So can you guys see my screen? Can you guys now see my screen? Great. Now, in our previous discussion, we have seen that. Hi, good afternoon. We have seen that how ROIC can be calculated and how it is used as a measure of what? Tell me. ROIC, what would we use for? ये हम किस चीज के लिए measure करते हैं? It is a measure of, हाँ जी, हाँ profitability, but what profitability? It is the operate. क्या बताओ? Organic profitability of the company. It is used to measure the organic profitability of the company. And again, there are two types of ROIC measures. One is pre-tax ROIC and another is post-tax ROIC. In pre-tax ROIC, it is influenced by two key drivers. One is OPEX, another is capital turnover, operating margin and capital turnover. Now, operating margin again can be classified into three different parts. One is gross operating margin. Next, SGA, that is selling, general and administrative expenses. And next was non-cash expense. Correct? Whereas in case of capital turnover, it is fixed asset turnover and current asset turnover. These are the two other bifurcations of capital turnover ratios. So any change in either operating margin or in capital turnover can lead or influence the ROIC, right? And I also asked all of you, all three of you, to prepare a report also. Have you prepared that report? एक report भी I think डेडलाइन था ना जमा देने का, वो नहीं डेडलाइन ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डेडलाइन ना दूं मतलब जमा ही नहीं करोगे ना, आराम से नहीं करोगे थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि देखो जितना ज्यादा काम करोगे उसके बाद फिर कंपनीज में चले जाओगे, फिर काम नहीं कर पाओगे, फिर दूसरे तरीके का असाइनमेंट देना पड़ेगा मुझे। जब कंपनी में काम करोगे तब दूसरे तरीके का मैं काम दूंगा। अगर सेमेस्टर के बाद होता है दैट्स ओके, बट अगर नहीं होता है तो तब तक कुछ और सर्टिफिकेशंस में करने के लिए बोलूंगा एट इंडिविजुअल लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे फोरेक्स का एक सर्टिफिकेशन, सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फोरेक्स का सर्टिफिकेशन का और फोरेक्स डीलर्स का आजकल बहुत ज्यादा मतलब डिमांड भी है। सो प्लीज, फोरेक्स का एक सर्टिफिकेशन है NISM के थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स मॉड्यूल जो है वो जरूर आप करो। आप सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डू दैट सर्टिफिकेशन। 3 साल लाइसेंस रहता है एंड आई थिंक उसका कॉस्ट है 1500 के आसपास, ऐसे कुछ कॉस्ट है, बट वो बैंक में रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप एज ए फोरेक्स मैनेजर या कुछ रिक्रूटमेंट होते हो, पहले तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होगे, 6 महीना 1 साल का प्रोबेशन रहेगा, फिर उसके बाद सीधे AM या मैनेजर के लेवल पे आपका होगा। Now let us come to another very important valuation measure which is known as free cash flow. इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने किए होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, खास करके NPV IRR जो टॉपिक्स हैं, तो उसमें फ्री कैश फ्लो का आपने बहुत शायद न्यूमेरिकल किए होंगे। Even I hope you have done one more numerical on time value of money. So there again the concept of this free cash flow came into picture. Now what is this free cash flow all about? Now free cash flow can be termed as
NOPLAT, that is net operating profit less adjusted taxes minus net investment. Now again, you know the definition of NOPLAT. This has been explained in the previous slides as well. Yes, Dipanshu, what is the definition of NOPLAT? NOPLAT का definition क्या है? Yes, धारणा? ना वो फुल फॉर्म तो सबको, बच्चे को भी पता है. वो कैसे, हाउ डू वी अराइव एट इट? तो उसके बाद कितने तरीके का टैक्स एडजस्टमेंट होता है? देखो अच्छे से देखो, एक टेबल बना हुआ था. कुछ इस तरीके का टेबल जो अभी स्क्रीन पे आपका है. Is it visible? See, these things you need to learn by heart. There is no other choice. Okay. There are some things which needs to be imbibed. चाहे आप लिख के प्रैक्टिस करो, चाहे याद करो, बट ये सारा स्टैंडर्ड चीज है, ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा. ठीक है, ये बेसिक्स है. ये पहला यूनिट जो जितना भी हम लोग कर रहे हैं, दिस इज टोटली बेसिक. इसके बाद फिर जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू करेंगे तब ओरिजिनल हमारा शुरू होगा. ये यूनिट 2 है. यहाँ से एक्चुअली आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का ABCD सारा है. एंड इसी के ऊपर मेनली जो लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, फ्री कैश फ्लो जो है, वो फ्री कैश फ्लो के ऊपर ही सारा कैलकुलेशंस बेस्ड है आपका. इक्विटी बोलो, डेप्ट बोलो, सारा कुछ उस FCF के ऊपर ही बेस्ड है. नाउ इन दिस वे ओनली, अब देखो कि कुछ माइनर प्लस माइनस दोनों साइड अगर हम कर रहे हैं तो हमें कुछ नए नए तरीके का आपके डेरिवेशंस मिल रहे हैं. क्या डेरिवेशंस मिल रहे हैं कि NOPLAT माइनस नेट इन्वेस्टमेंट हमने डिफाइन तो कर दिया है, बट अगेन अगर जबरदस्ती हम इस पर डिप्रिसिएशन एक बार ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें, तो देखो NOPLAT जो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस है, वो आपका क्या होता है, डिविजिबल इनकम होता है. तो वो डिविजिबल इनकम के साथ जब so when one is adding the non-cash expenses, that is depreciation, they will get the gross cash flow of the firm. And after that, when again depreciation is added with the net investment amount, then it comes to the gross investment, and then we deduct. Now why it is the gross investment, why it is written like that? Because if you see that whenever we purchase any fixed asset, इसको लॉजिकली समझो थोड़ा कि क्यों ऐसा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसे बोल रहा है एंड नेट का कॉन्सेप्ट क्या है. बिकॉज व्हेनेवर यू आर परचेजिंग एनी एसेट, से फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन विल बी व्हाट, नेट एसेट. ये एनुअल रिपोर्ट में किस तरीके से लिखा जाता है, ग्रॉस ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट ब्लॉक. आप देखना, कभी आपने डाउनलोड किए थे एनुअल रिपोर्ट? आप लोगों को सबको बोला था मैंने एक एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए 3 से 4 साल का, 3 साल का. उसके साथ ही करना. हाँ, तो कब करोगे? मतलब पढ़े भी नहीं हुए एनुअल रिपोर्ट, करना तो दूर की बात है. सार्थक बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा. अरे ठीक है, संडे है, आज तुम बोलोगे कि वैलेंटाइन है तो मतलब देखो वो. Now another is, apart from free cash flow, there is another particular thing which is known as financing flow. Now ये financing जो flow है, which is available, which is also known as the cash flow which is available to the investors, how it is computed? First is after tax interest expense plus cash dividend. अब देखो यहाँ पे जितने भी चीज लिखा हुआ है, whatever things they are written,
These are all related to financial expense. अगर कोई बंदे ने लोन लिया है, ठीक है, कोई डिविडेंड पे किया है, और डिविडेंड आप जानते हो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ शेयर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस है आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट, जो आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट में करते थे, याद है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी, वो वाला इंटरेस्ट आ गया, प्लस क्या, कैश डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल जो मैंने अभी बताया, प्लस क्या, रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट, अगर डेप्ट आपने रिपेमेंट किए हो तो वो तो कैश रिपेमेंट होता है, तो एक ये कहां से आपको अमाउंट मिलेगा बताओ, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR, याद आ रहा है, ये आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि रिडेम्पशन कितना हुआ है। नेक्स्ट क्या, न्यू बोरोइंग्स, अगर कोई बोरोइंग हुआ है तो वो अमाउंट भी एडजस्ट होगा। नेक्स्ट क्या, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो देखना कि एक एडजस्टमेंट आता है कन्वर्टेबल्स बोल के, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बता रहा हूँ, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कन्वर्टेबल्स बोलते हैं एक पीरियड के बाद, हाँ, तो एक प्रोपोर्शन में ही सिर्फ उसे इक्विटी में होता है, बाकी रिडीम होता है, तो जो रिडेम्पशन होगा तो उस अमाउंट को भी हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज शेयर बायबैक, वो क्या है, वो मैकेनिज्म क्यों होता है, क्यों करते हैं कंपनी ऐसा, उसका लॉजिक क्या है, क्या कम है, यहाँ पे लिखो, मार्कर है तो यहाँ पे लिखो, लिख के देखो क्या हो रहा है, डू इट ऑन द बोर्ड। कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो कि कंपनी एक्स है, पहले 1 लाख शेयर था, अब बाईबैक कर लिया है, तो दैट मीन्स क्या, शेयर कम हो जाएगा ना उसका, 1 लाख से अभी 80 हजार हो गए, तो क्या हुआ एक्चुअली, करो ना, करो बोर्ड में करो तुम, डू इट ऑन द बोर्ड, देन ओनली यू विल लर्न। ये लो, तुम्हें लिखना है, मुझे कुछ नहीं लिखना है। इशू नहीं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, शेयर कैपिटल में हाँ, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है, 1 लाख है, बाईबैक के बाद कितना हो गया, 80,000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यस, धारणा एंड सार्थक, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, कैश कम हो गया, एक तो सर ये बायबैक में 20,000 बिजनेस में से कम हो गया, हाँ, तो कैपिटल कम हो गया, चलो, और क्या हुआ, बिजनेस का वैल्यू बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया, कैसे, सर अपने शेयर्स अपने पास वापस आ गए ना, तो हमारे पास वो ज्यादा हो गया, क्या मैथमेटिकली समझाओ मुझे, कैसे होगा, बिजनेस की नेटवर्क मतलब 1 करोड़, सर हमारा लायबिलिटी कम हो गई ना बेसिकली, मैंने इसको अपनी कंपनी के शेयर्स दिए हुए हैं बांचू को, मैंने इससे वो वापस खरीद लिए, तो मैंने इसको पेमेंट कर दी उन शेयर्स की, मैंने अपने वो कर लिया, मतलब एंट्री क्या होगा, कैश चला गया ना आपके तरफ से, कैश तो कम हो गया, बट वो शेयर्स भी तो आए ना, मतलब ना, शेयर्स तो आपने बाय बैक कर लिया, दैट मींस क्या, see what is the adjustment over there, try to note the adjustment, one is an authorized capital, another is paid up capital. Paid up capital is also known as outstanding shares which are in the market. I hope all of you will agree. Go ahead. I hope all of you will agree on that part. Now think what is happening. Say for example,
in 2010, 1 lakh outstanding shares was in the market. But in 2011, the company decided, no, I will not put across 1 lakh shares in the market. Now my share capital or number of shares will go to 80,000. That time, the market capitalization, the market cap of the company was say rupees 5 crore. Right? So when it reduced, then also I think the value of the firm would have been 5 crore. Right. Correct? Now there is a measure called EPS or NPS, market price per share. Correct? So if the valuation is 5 crore, so 5 crore divided by 1 lakh, how much is the value? 50 lakhs. 50. No, not 50 lakhs. It is 5 crore, so 5 followed by 7 zeros, 1 lakh means 1 followed by 5 zeros. So per share the price is 500. Now if it is coming down to 80,000, then how much is the value? It's more than that. Yes. How much it is increasing? Almost 5 point, if I'm not wrong, 5.25 times. Yes, sir. Same. Right? Yes, sir. This is the strategy. ये तो मैंने भी सोचा था कि जो नेटवर्क लगा लो आप ये 5CR सोचने से कुछ नहीं होता है, proof करने से सर होता कांस्टेंट क्यों लिया सर अभी इस टाइम पे है। मतलब आपने 5CR ही पे रखी मार्केट का It can increase, but once the buyback सर comes, increase भी तो हो सकता है ना देखो, it means क्या कि आप अगर उस शेयर को बायबैक कर रहे हो, that means क्या authorized capital will increase ना, your authorized limit is getting increased. आप authorized एक तो फिक्स है ना, authorized कि आप इतना कर सकते हो, but जो treasury shares हैं वो increase हो जाएगा, जो proprietary shares हैं, proprietors तो फिर से खरीद रहा है ना, कंपनी खुद अपना shares को बायबैक कर रहा है, so that means what, the treasury shares are increasing. ट्रेजरी का फिक्स परसेंटेज होता है, कितना परसेंटेज ट्रेजरी शेयर होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का, बोलो बेसिक है, फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अप टू 5%, करेक्ट, ट्रेजरी शेयर होता है, ये जो 5% में है क्या थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, जहां तौर पे 2% या 3% ही रखते हैं सब कुछ ट्रेजरी शेयर्स, बट again this 20,000 shares will be a part of treasury share. My outstanding shares which are traded in the market, that will reduce, and if that reduces, what will happen? My market value will go up. So this is one of the strategies of buyback. And many companies like Infosys did a buyback, TCS did a buyback, because they don't want that huge amount of capital, because there is something called return on capital employed. So if there is an idle capital in your firm, and if you're not utilizing it, that will not drive you any benefits, right? If there is a requirement, then only you will procure the capital. Correct. So that's the logic behind buyback. I hope it is clear now, right? Now another thing is share issue. I don't think that there will be any confusion regarding share issue. Next, excess of marketable securities. What is excess of marketable securities, Sarthak? That we have a lot of mutual funds invested or capital invested in market. So why is there a triangle? Change in excess marketable securities. Yes, Dharna, what is change in excess marketable securities and why it is added? Yes, Dipanshu, what is the definition of excess marketable securities? मींस कि उन्होंने जो लास्ट ईयर के उनसे अभी ना, पहला तो ये डेफिनेशन बोलो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज सच एज ये डीआर टाइप क्या शॉर्ट टर्म जो बोरेंस हाँ वो क्या है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
अब ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है. If the company has excess amount of cash balance, then what happens? Short term securities. जैसे मिलर ओआरआर मॉडल आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? क्या होता है? थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर कैश चला जाता है, then that cash should be invested in marketable securities, right? So while measuring current assets, we have four components, right? One is inventory, another is bills, receivables or debtors. Next is cash, and fourth element is these marketable securities. Am I correct? Now there is a ratio called current ratio. How do we define current ratio? Current assets divided by current liabilities, right? Another ratio is known as acid test ratio. What is that? Liquid ratio. That is known as liquid ratio also. Very good. So how do we define? Less than Less cash. inventory? Cash. No, not cash. It is current assets minus inventory divided by current liabilities. No, sir, I was saying कि cash plus these marketable securities. Next is super liquid ratio. इसमें आएगा cash and marketable securities divided by current liabilities. Okay, this is actually the excess cash or excess marketable securities. अब इसमें अगर चेंज आता है, चेंज मीन्स क्या? जो इंटरेस्ट इनकम होता है. सपोज ट्रेजरी बिल्स आपने कितना, बताओ इंडिया में ट्रेजरी बिल्स कितने कितने दिन में ट्रेड होता है? 91 होता है और 182 होता है और 270 डेज भी होता है. और मिनिमम कितना होता है? मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 डेज भी होता है, हाँ. एंड हाईली लिक्विड होता है, बट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोज इन क्रोर्स. करेक्ट? इसका एक टेबल वेबल बना के रख लो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का. ठीक है? ट्रेजरी बिल्स, उसका मैच्योरिटी कितना, उसका इंटरेस्ट रेट कितना, कितना अमाउंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और कहाँ से कर सकते हो. ऐसे एक चार्ट बनाओ. वो चार्ट आपके पास रेडी रिकॉर्ड होना चाहिए. कोई भी इंटरव्यू में जाओगे ना तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा. अभी तक तो कोई रैगिंग लेने वाला नहीं था, अब मैं ही ले रहा हूँ. क्या किया जाए? और मैं तब तक लूंगा, एंड सेमेस्टर तक लूंगा ये रैगिंग, पहले बता रहा हूँ. प्लीज कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और एक्सेल शीट्स बनाना शुरू करो. मैं बता रहा हूँ, टाइम नहीं है आपके पास. आई एम टेलिंग. चाहे ग्रुप में 3 लोग काम बांट लो कि तू ट्रेजरी बिल्स देख, तू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देख, तू बॉन्ड का देख, तू डिवेंचर का देख, करके एक्सेल शीट बना लो. ये मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये रेडी रिकॉर्ड्स आपके बहुत आगे काम आएंगे. कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, खास करके एचडीएफसी में जा रहे हो ना. एचडीएफसी में सिर्फ एचडीएफसी का ही नहीं, उसका जो कॉम्पिटिटर है एक्सिस, आईसीआईसी तो आज चलो डूब गया है, वो डूब गया वो बैंक. पता है ना क्या हुआ है आईसीआईसीआई के साथ? क्या हो यार, तुम लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो और लेटेस्ट मार्केट अपडेट नहीं है तुम लोगों के पास. एसीजी शिपयार्ड का नाम सुने हो? नीरव मोदी के बाद सबसे बड़ा स्कैम खुलासा हुआ है. 22,842 crores default. ICICI has lended around 7,000 something crore. उसके बाद IDBI है, उसके बाद SBI है. 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एकदम मतलब ICICI तो प्राइवेट सेक्टर में तो HDFC के बाद अगर नाम आता है तो एक्सिस और ICICI का ही आता है. तो ICICI का शेयर आज गिरेगा देखना. और CBI प्रो हुआ है, बाहर से गिरेगा पूरा एकदम शेयर. ऑलमोस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 30% तो मिनिमम रिड्यूस होगा उसका. देखना, पूरा आर्टिकल आया है. सर एक के साथ सेटिंग हो जाती है, 3-4 केसेस. देखो, इट इज जस्ट लाइक परसुएडिंग समवन एल्स कि सर इसने भी लोन दे दिया है तो आप भी लोन दे दीजिए. और एक बैंक से तो करना पड़ता है ना. हाई वॉल्यूम जो दिया है वो आईसीआईसीआई दिया है. अब आईसीआईसीआई इतना स्ट्रिंजेंट बैंक होकर लोन दे दिया है, मतलब बाकी लोग तो दे ही देंगे. इट इज जस्ट लाइक ए चेन.
तो इसलिए मैंने आज कमेंट किया है लिंक्डइन में स्पेशली कि देयर शुड बी अ कॉलम प्रोवाइडिंग डेटा दैट डायरेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट इन हाई वैल्यू लोन्स, ये एक डिस्क्लोजर पॉलिसी होना चाहिए। एंड बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसा हो गया ना कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा लिक्विडिटी के थ्रू, अदरवाइज द बैंकिंग इंडस्ट्री विल फेल। PSUs एज वेल एज प्राइवेट लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना पड़ेगा। एक बार किया था ना, आई थिंक NPA सरकार ने किया था, NDA सरकार ने, कांग्रेस ने किया था 50,000, आई स्टिल रिमेम्बर, एग्रीकल्चर लोन्स के ऊपर 50,000 करोड़ बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्फ्यूज किया था। एंड लास्ट इज आफ्टर टैक्स इनकम ऑन एक्सेस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, that again you need to adjust, then you will get this financing flow or cash flow available to investors। ठीक है, So we are subtracting जो भी हम कैश दे रहे हैं और वो जो आ रहा है वो ऐड कर रहे हैं। तो जो आ रहा है वो लेस कर रहे हैं और जो दे रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं। तो एक्सेस एडिशंस जो है, अगर हम एक्सेस दे रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, तो एक्चुअली क्या है, that is a cash component only which you are investing in marketable securities। no sir, I'm saying कि जैसे भी वो borrowing subtract करिए, मतलब कैश we are receiving from the market and जो हम दे रहे हैं assumption वो कैश डिक्रीज हो गया, तो सर ये कैसे कैश फ्लो अवेलेबल कैसे होगा टू इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स को तो बैलेंस आना चाहिए ना कि इतना बैलेंस आना। Now who are the investors? Obviously the company shareholders are the investors, correct? Now if you look at this thing, that is excess, change in excess marketable securities, the change can be either positive or the change can be negative। नेगेटिव किस केस में हो सकता है? जब मैं मार्केटेबल टीवीएस को कैश कर रहा हूं तब मेरे पास कैश आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एडेड। एंड दूसरा चेंज क्या हो सकता है कि अगर मैं उसे खरीद रहा हूं, तो खरीदने का मतलब क्या है, मेरे पास से कैश आ रहा है या जा रहा है? सिर्फ जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री हम कैसे करते थे, सिर्फ हम देखते थे ना कि एसेट आ रहा है या एसेट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी एसेट है, कैश भी एक एसेट है, दोनों ही एसेट है ना। तो कौन सा जा रहा है? कैश जा रहा है, दैट मीन्स डिडक्ट होगा, और सिक्योरिटीज आ रहा है तो सिक्योरिटीज बैलेंस आप होगा। आर यू क्लीन इन दैट? और दूसरा आप देखो कि आफ्टर टैक्स इनकम ऑन excess marketable securities। So after tax income in excess marketable securities मतलब क्या है? Income on marketable securities means वो ब्याज है जो आपने अर्न किया। तो एक्चुअली ब्याज को अगर देखा जाए क्या होगा कि इफ इंटरेस्ट इज कमिंग देन कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हम यही करते हैं, यस और नो? बेसिक जर्नल एंट्री सोच लो, there are two elements, one is cash and another is interest, right? एक कैश है और एक इंटरेस्ट है। now cash is what? asset is coming in means increase, interest income है, ये income means क्या? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आड़ी है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? क्या बात है, रेवेन्यू ये तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। कैश टू इंटरेस्ट ही तो एंट्री करते हो, तो मैं बेसिक प्रिंसिपल्स पे आ रहा हूं। अब क्या बोला? टैक्स। टैक्स इज व्हाट? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है क्या? डेबिट। करेक्ट? और इंटरेस्ट इनकम, इस केस में क्या होगा?
इंटरेस्ट इनकम, इनकम घट रहा है, इनकम घट रहा है मतलब क्या है, डेबिट। तो वहां पे जो फॉर्मेट में आपके स्क्रीन में है लेस आफ्टर इनकम कम होगा या नहीं, एंड इसीलिए आप देखो कि ये अमाउंट और ये अमाउंट कट जाएगा, जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे टैक्स का वो एंट्री आ जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो हमेशा कोई चीज अगर थोड़ा सा भी खनकता है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन की याद कर लेना, कभी गलत नहीं हो। क्लियर है? So this is what I cannot teach. This you have to learn yourself. If you are a finance expert, you should always stick to the basics, that why it is happening. फॉर्मेट पे मत जाओ, फॉर्मेट तो याद करना पड़ेगा आपको, बट उसे याद करने का टेक्निक क्या है। अगर मान लो कि एग्जाम हॉल में भूल जाओगे तो क्या करोगे? आपको आइटम याद है बट यू डोंट नो वेदर इट विल बी प्लस और माइनस, कंफ्यूजन हो गया। जस्ट इस तरीके से तोड़ लो। क्लियर है? याद होगा दीपांशु? फर्स्ट में ये जो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है, ये इसमें से हम सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस से होगा, इन्वेस्टर का देख रहे हैं तो कैश फ्लो। अगर मान लो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, इट इज ओनली इक्विटी कंपनी, देयर इज नो डेब्ट इन इट। हो सकता है या नहीं हो सकता है? जैसे टीसीएस, जीरो डेब्ट कंपनी। ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इंटरेस्ट मैंने लिखा है, आई हैव जस्ट ओनली इंक्लूडेड द आइटम, बट इट कैन बी जीरो आल्सो। जैसे another example I can quote, in financial management books you will see that the cost of redeemable debt, उसका फॉर्मूला इतना बड़ा है, उसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी है, उसके अंदर डिस्काउंट भी है, सब कुछ इंक्लूड है। बट डू यू थिंक दैट वन पर्टिकुलर डिबेंचर हैज ऑल द फीचर्स? डेफिनेटली नॉट। Now use these two formats and please prepare the free cash flow of this firm from the income statement and balance sheet. Yes. Now there are certain other key drivers of FCF also. Just उन्हीं इक्वेशंस का इधर उधर हुआ है। अब देखो, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, पहला इक्वेशन को कॉपी में नोट डाउन करो, नो प्लैट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नो प्लैट। अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो नो प्लैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट ही आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय नो प्लैट, एंड नो प्लैट बाहर कैंसिल हो जाएगा। अगेन विल गिव द सेम इक्वेशन, नो प्लैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। देखो, इट इज जस्ट लाइक no flat multiplied by net investment divided by no flat. So if we simplify it, no flat into 1 minus, not 1 minus, it will be no flat minus net investment multiplied by no flat will cancel, and again we will get back the same formula, no flat minus net investment. Correct. Similarly, we have another formula, that invested capital multiplied by, now we are just extending the formula. If you see that from the second step, again now we are including one more variable, that is invested capital. So invested capital, if we multiply, then we need to divide also. So we are dividing now no plat by invested capital, and again multiplied by that factor 1 minus net investment by no plat.
Now again, further deteriorating the formula on the right hand side, the extreme right hand side, जो 1 minus net investment by NOPLAT लिखा हुआ है, ऊपर डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी हम क्या इन्वेस्टेड कैपिटल से डिवाइड कर रहे हैं. And if we divide net invested capital by net investment by invested capital, then we will get the growth rate. And similarly, NOPLAT divided by invested capital अगर हम करते हैं तो क्या ROIC. अब देखिए NOPLAT divided by invested capital अगर ROIC होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जो NOPLAT divided by invested capital है, that will be also considered as ROIC. So finally, the equation takes into a shape that invested capital is a factor of what? ROIC multiplied by 1 minus growth rate by ROIC. So the three drivers of free cash flow of the firm are क्या क्या हमें पता चला? एक है invested capital of the firm, second is what? The ROIC, and last but not the least the growth rate. Clear? So anything which influences this free cash flow will be these three factors. So whenever you will write the interpretation, you have to write the interpretation in the context of these three things. कि अगर बढ़ रहा है तो किस कारण बढ़ रहा है? क्या इन्वेस्टेड कैपिटल ज्यादा था? क्योंकि अगर कैपिटल ज्यादा होगा तो ROIC का भी इम्पैक्ट उसी के ऊपर आएगा. ROIC is what? Nothing but a percentage. Correct. Growth rate is what? Nothing but a percentage. So both these percentages will have an impact on the invested capital. Excuse me. Hello? हाँ बताइए. ना मुझे पर्सनल लोन नहीं लेना है, खास करके ICICI तो इसलिए नहीं क्योंकि आपका बैंक फ्रॉड निकला है. आज न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए. हाँ लोन लेने के लिए बोला. पूरे कर लेना वैसे. ठीक है, इसलिए बोल दिया था आपका बैंक फ्रॉड निकला है, आप बैंक में पढ़ लीजिए. हाँ कल ही आया था इनफैक्ट रात में. ABG शिपयार्ड 22,842 crores. Can you imagine? जिसने भी ये भाई साहब एक इकोनॉमी इधर से उधर हो जाता है. और सोचो अगर नीरव मोदी की तरह अगर इसका भी चेयरमैन भाग गया पैसा लेके. ये तो भाग जाते हैं एंड जो मरता तो एम्प्लॉय है ना, उनको फिर उनको फायर करने के पैसे बचाने के चक्कर में बैंक. नो एम्प्लॉय देखो कंपनी तो बेल आउट हो रहा है. अब बेल आउट हो रहा है तो एबीजी शिपयार्ड का जो भी प्राइस है वो तो एक दिन में धड़ से गिरा. और उसे अगर आप कोई खरीदता भी है तो नेक्स्ट कौन लेगा उसे, वो भी एक चीज है. एबीजी शिपयार्ड को कौन लेगा? अब गवर्नमेंट का है ये शिपयार्ड है ना, तो मोस्टली नेवल शिप यही लोग खरीदेंगे. तो अब देखना यही है. अगर आपके पास आर्टिकल है तो शेयर कर देना, ग्रुप बना लेते हैं. हाँ लिंक्डइन में ही था ये. मेरा ही एक स्टूडेंट JP मॉर्गन चेज में, उसी ने भेजा था. वो पहले आनंद राठी में था, आनंद राठी के बाद अभी JP मॉर्गन चेज में. वो भी 7 राउंड इंटरव्यू क्लियर करके उसका हुआ है. JP मॉर्गन उसका इंटरव्यू ऑस्ट्रेलियन को JP मॉर्गन के ग्रुप से लिया था. और उसका हुआ भी जब हुआ तब लॉकडाउन चल रहा था. हेलो मिस्टर BBIP, बाहर जाकर बात करो. वो भी पूछ रहे हैं कितना लंबा बनाए थे इसलिए. पहले पूछा भी बोल रहे थे. तुम इसके साथ ऐड भी हो सकते हो. बहुत अच्छा बन रहा है आपको बहुत सारी वेबसाइट
Abhishek Jain, analyst, asset and wealth management at JP Morgan Chase. Yeah, Raj is the biggest bank for so amount ICICI Bank 7,089 crore, IDBI Bank 3,639 crore, State Bank 2,925 crore, Bank of Baroda 1,614 crore, and Punjab National Bank, obviously they are into the list. 1,240 crore. कहाँ जोड़ देगा कि बस PNB से बहुत बंद हो गया। सेविंग अकाउंट भी बंद कर दो कुछ भी कर सकते हैं इसका अब नीरव मोदी का 11-12 हज़ार करोड़ था ना हाँ उसका था इतना उसका सिर्फ PNB का ही था ना उसका था आई थिंक 14,000 समथिंग उसमें से 11-12 तो PNB का ही था हाँ मेजर पीएनबी बस वो सेविंग अकाउंट भी बंद करता हूँ इससे ये ना करेंगे क्या इसके हमारे यहाँ उसका 14,000 करोड़ के आसपास था। उसमें से 11-11.5 तो PNB का ही है हाँ उसमें ऑलमोस्ट इतना लोन ले ले तो बैंक्स भी देते हैं मतलब कुछ वो नहीं लगवाते सर ये ये कौन सी सेटिंग ना ना एक्चुअली ना प्रेशर होता है अपर मैनेजमेंट का, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। मेरा एक दोस्त है उसमें स्कैम 1992 में भी वो भी वो तो उसमें तो क्या है बंदे से वो तो अलग स्कीम था वो तो अलग वो was something different। वो तो उसमें मतलब बिना वो करे उसे पैसे ले लेंगे He used to say that give me money for a day, I will double that money or give you some return over it. Same ये तो प्रॉपर लोन and ये तो that was Harshad Mehta's case. Now I will tell you one more. उसका नाम था बेरिंग्स बैंक, बेरिंग बैंक सिंगापुर। वहां पे भी एक बंदा था, तो वो क्या करता था, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता था। वो क्या करता था, वैसे ही मार्केट में पैसा लगाया, सोचा कि मार्केट आप जाएगा, आप अगर चला गया तो 25-30 टाइम्स मोर आपको बट डेरिवेटिव में अमाउंट भी तो फिर उतना लगाना होता है। एग्जैक्टली अमाउंट साइज भी तो होता है ना। तो अब खुद का पैसा तो था नहीं, बैंक का पैसा था। अब सोचो बेरिंग्स बैंक का पैसा उसने 2 मिलियन लगा दिया। अब 2 मिलियन के ऊपर अगर उसे 200 मिलियन मिल रहा है तो बेरिंग बैंक भी बोलेगा कि भाई मैनेजर से सीधा उसे एकदम फाइनेंस सीएफओ बना दिया, सीएफओ बना के उसे पूरा एकदम बोला कि सिंगापुर ब्रांच तुम ही हैंडल करो। और उधर जाके अब मार्केट हमेशा उसके हिसाब से तो नहीं चलेगा ना, तो जब डाउन साइडेड हो गया तो लॉस खाया, तो उसने और उधार लिया, उधार लेके फिर से लगाया, फिर नीचे चला गया, तो अब तो कोलैप्स पूरा। देखना कभी, पैसे बैंक के थे। हाँ पैसे बैंक की थी सारे। अभी खेल जाते हैं ना, अपना रिस्क नहीं होता। हाँ तो आप उस बेरिंग बैंक का एक्सीलेंट केस है, तो आप उसके पढ़ना कभी। तो इट इज जस्ट लाइक हर्षद मेहता वाली। आप सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट डिबैकल्स बोल के ये लिखना। क्या नाम था सर इसका 23,000 वाले का? क्या चीज? 23,000 वाले का एबी एबीजी शिपयार्ड। ABG शिपयार्ड से ये तो 2 days ago आई है। 2 days ago आई। ABG शिपयार्ड for cheating banks of 20 billion. सोचो कितना महान काम किया है। नहीं तो बस लोन ले लिया, पैसे नहीं हाथ खड़े कर दिए। तो इन दी एंड सर मतलब अगर बैंक को मान लो गवर्नमेंट ने एड दे दी किसी, तो इन दी एंड गया तो गवर्नमेंट का ही पैसा ना। बिल्कुल, वो तो अब चलाने ये तो इकोनॉमी के रेट से ले और बैंक्स के शेयर प्राइसेस। I am saying you with all respect with Gujaratis. You won't believe me. Most of the traders in Gujarat, they used to do like in this only. अब तो बहुत सुधर चुके हैं वो लोग। अदरवाइज जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, एक खुद ही ने आके तुम्हारा पकड़ाव किया था, बिकॉज उसके घर में वो बोल रहा था 20,000 करोड़ है। कैन यू इमेजिन दैट अमाउंट? 20,000 करोड़ कैश कैश। कैसे कन्वर्ट ही कैसे करा होगा उसमें?
हाँ कर नहीं सकता ना, तो इसलिए वो सीधे आके सरेंडर कर दिया. कर ही नहीं सकता सर इतना तो amount surrender कोई- करके And he told also that there are very many politicians money also which are involved. Can you छोटा imagine? amount है ना, 20,000 crore मतलब सर, पूरा कमरा चाहिए आपको कैश इतना कैश रखने के लिए. वो गई सकती मतलब चेंज हुआ. चेंज कैसे करेंगे? ना सीबीआई उसे बैठा के फिर क्वेश्चनिंग कर रहा था. ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस का भी तो नाम आना चाहिए. इतना कैश तो नॉर्मल ट्रेडर जो भी जितना बड़ा बिजनेसमैन है उतना कैसे पहुंच जाएगा वो. सर ये पॉलिटिशियंस ठीक का है. सबका हाथ होता है, इन सबका कट होता है.